عمرے کا طریقہ؟ جی شیخ، شروع کر دوں شیخ یہاں سے؟ جی ہاں پڑھ۔ بسم اللہ۔ عمرہ قرآن و سنت کی روشنی میں احرام حج تمتع کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے، اس لیے حسب ذیل طریقے پر پہلے عمرہ کر لے۔ ہر عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ نمبر 1۔ نمبر ایک، ضرورت ہو تو پہلے بال وغیرہ کاٹ لے، پھر غسل کرے اور جسم پر خوشبو لگائے۔ نمبر دو، احرام باندھے، یعنی مرد حضرات اپنے بدن سے آدھا کی ساقط کے مطابق سلے ہوئے تمام کپڑے نکال کر بغیر سلائے ہوئے تہبند پہن لے اور چادر لپیٹ لے۔ افضل یہی ہے کہ احرام سفید اور صاف ستھرے ہو، عورت اپنے عام کپڑوں میں ہی رہے وہی اس کا احرام ہے، البتہ وہ لباس زیب و زینت اور شہرت و نمائش سے خالی ہو۔ ایسی چپل جو ٹخنے نہ ڈھانپے مردوں کو پہننے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، عورتوں کے لیے ایسی کوئی سختی نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے ہے کہ وہ ٹخنا نہ ڈھانپے۔ تو دو ڈالی والے چپل جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ پہن دو ڈالی والی چپل۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ ٹی وائی ڈور پڑھ رہے ہیں؟ جی جی جی۔ جی جی۔ تو آپ روزانہ آتے رہیے، بہت سارے جو مرد حضرات پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ جی ہاں شیخ انشاءاللہ، یہ نوٹ پڑھوں شیخ اس کا؟ نوٹ: ہوائی جہاز سے جدہ جانے والے حضرات جہاز میں بیٹھنے سے قبل احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات پر پہنچنے کے بعد میقات پہنچنے کے بعد احرام کے دل میں نیت کرتے ہوئے الفاظ ادا کرے۔ ہاں، یہاں نوٹ: نیت پر میں کیا ہے، سلے ہوئے کپڑے کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کہیں بھی تاگا نہ رہنا چاہیے، تو ویسا دیکھا ہے تو احرام بھی پورے تاگوں سے ہی بنا ہوا ہے، تو وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگ بیلٹ لگاتے ہیں تو تاگے سے کونے کونے اس کے سیے ہوئے ہوتے ہیں، یا چھتری ہوتی ہے تو کونے میں تاگا ہوتا ہے، یا ان کا ویلٹ ہے یا ان کا کوئی پرس ہے تو پریشان آتے ہیں تو تاگا موجود ہے۔ تو تاگا یا دھاگا یہ مراد نہیں ہے۔ مخیط کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا کہ جس سے کہ ڈھانچہ ظاہر ہو جائے۔ مثال طور پہ آپ جو ہے جیسے استین لگاتے ہیں تو ہاتھ کلیئر لگ رہا ہے، یہاں پر چیسٹ ہے، یہاں پر جو ہے نا کمر ہے، تو ایسا جو ساخت کہتے ہیں اس کو، یعنی جسم کی جو بناوٹ ہے، کروز ہے، وہ کلیئر کلیئر نمایاں ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہ سیے، یعنی ایسا نہ سیا جائے کہ جیسے کپڑا یا قمیص سی جاتی ہے اس انداز میں نہ سینے کے لیے وہ ورڈ آیا مخیط۔ مخیط کا معنی یہ نہیں ہے کہ دھاگے نہ ہو، تاگا نہ ہو، ایسی باتیں نہیں ہے، ویسے تشویش دور کرے۔ اسی طریقے سے بعض خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ نوز پیس نہیں لگانا ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی چادر ہے، مرد حضرات سامنے آ رہے ہیں، بے چینی محسوس کر رہے تو رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ آگے سے چادر ڈال سکتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نوز پیس جو خاص طور سے چہرے کے لیے بنائی جاتی ہے نا، وہ منع ہے، نقاب منع ہے، عورت کا چہرہ ڈھانپنا منع نہیں ہے۔ اسی لیے اگر عورت دیکھتی ہے کہ مرد حضرات بہت سامنے آ گئے یا کوئی مرد ان کو گھور رہے ہیں، یا تو وہ عورت بے چینی محسوس کر رہی ہے، تو وہ رائٹ یا لیفٹ اپنی چادر اتنی لمبی رکھے کہ رائٹ یا لیفٹ کر لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح گلوز، دستانے نہ پہنے، لیکن اگر کپڑا جو ہے اس کے ہاتھ پر آ جا رہا ہے، گر رہا ہے چلتے چلتے، تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آگے بڑھنا۔ شیخ ایک نوٹ تو پڑھ دیا تھا ادھر اوپر کا، یہ میقات سے پہلے کا، تو سیکنڈ والا پڑھوں نا؟ نوٹ: نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، نماز اور دیگر عبادات میں نیت دل ہی سے کی جاتی ہے، لیکن صرف حج اور عمرہ میں دل سے نیت کے ساتھ زبان سے الفاظ کی ادائیگی بھی مطلوب ہے۔ تو جیسے ناک سے ہم سونگتے ہیں، کان سے نہیں سونگتے، جو خوشبو سونگنے کا عمل جو ناک سے ہوتا ہے، کان سے نہیں، تو اسی طرح نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے جو ہوتا ہے اس کو تلفظ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے بعض لوگ غلط فہمی میں آ کر یہ سمجھتے ہیں بھائی زبان سے بھی نیت کرنا ہے، اسی لیے کہتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف، واسطے اللہ کے 4 رکعت پڑھ رہا ہوں میں امام، تو ایسا اردو میں نیتیں نہیں ہوتی ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ علماء اکرام نے اس کو بدعت کہا ہے۔ تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر
ज़बाह करते वक्त पर आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं? फिर आप जो है एहराम बांधते वक्त पर अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन क्यों कहते हैं? तो हम कह रहे हैं ये वैसे ही है जैसे नमाज पढ़ते वक्त पर आप दिल में नियत करते हैं और अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा करते हैं। दिल की नियत एक अलग इबादत है, जबान से तकबीर तहरीमा कहना एक जबान की बात है। तो यहाँ दिल की इबादत अलग, जबान की बात अलग। इसका मतलब ये नहीं कि आप जबान से नियत करें। तकबीर तहरीमा को किसी ने नहीं कहा कि जबान से आप नियत कर रहे हैं, बल्कि ये एक अलग ही बात है। तो बिल्कुल इसी तरीके से लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कह रहे हैं तो जबान से आप तलफ्फुज अदा कर रहे हैं, नियत तो दिल में ही होती है। इसीलिए मीकात और नियत, ये जो है ना, मैंने वहां पर हेडिंग बांधी है। और इसी तरह बिस्मिल्लाह अल्लाह पर दिल में नियत होती है और जबान से बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर अदा करते हैं। तो ये उसी वक्त पर जो दलील आती है वो करेंगे। जहां दलील नहीं आती हम अपनी तरफ से लॉजिक करके ऐड नहीं कर सकते। मीकात और नियत, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, मीकात पहुंचकर दिल में उम्रा की नियत करे और ये कहे अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, या अल्लाह मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ। अगर ऐसा नहीं किया और आगे बढ़ गए तो फिर फिदिया देना होगा। एक बकरा जुबाह करके अहले मक्का के फुकराओं में तकसीम किया जाएगा। देखिए, दिल दिल में नियत करना ये रुकन है, और मीकात पर पहुंचकर अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन कहते हुए जबान से अदा करना ये वाजिबात में से है। तो इसलिए दोनों है। रुकन अदा नहीं हुआ तो फिर आदमी का हज ही नहीं होता। तो रुकन दिल में होता है, तो दिल के अंदर की अहमियत अलग है, तलफ्फुज की अहमियत अलग है। दोनों में इससे ही पता चल रहा है। अगर कोई दूसरों की तरफ से उम्रा उम्रा कर रहा हो तो नियत करने के साथ अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा अन, या अल्लाह मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ फलां शख्स की तरफ से, कहते हुए अन के बाद उस आदमी का नाम भी ले। उम्रा आप किसी की तरफ से भी करते हैं, उम्रा बदल, हज बदल, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप अपनी तरफ से फर्ज अदा कर लिए हो, तो आपका दूसरा या तीसरा उम्रा हो तो तब जो है आप किसी और की तरफ से कर सकते हैं, अगर वो मरहूम इंतकाल फरमा चुके हैं। या अगर वो जिंदा भी हो तो इस हालत में है कि वो सवारी पर सवार नहीं हो सकते, सफर नहीं कर सकते, इतने ज्यादा बीमार है कि कभी वो अच्छा होने का उनको चांस नहीं है, या इतने बूढ़े हो चुके हैं कि ताकत नहीं है, तो तब ऐसों की तरफ से भी इजाजत दी गई है। वरना हट्टे कट्टे की तरफ से आप उम्रा बदल नहीं कर सकते। अगर अगर मक्के मुकर्रमा पहुंचने में किसी किस्म की रुकावट का खदशा हो तो हज व उमरा को जाने वाला नियत करते वक्त ये कहे अल्लाहुम्मा महल्ली हैथु हबस्तनी, या अल्लाह तू मुझे जिस वक्त और जहां रोक देगा वहीं मेरे लिए हज और एहराम से निकलने और हलाल होने की जगह है। फिर अगर वो मक्का ना पहुंच सके तो बगैर दम दिए हलाल हो जाएगा, यानी एहराम खोल सकता है। हाँ, देखिए, अगर साथियों को आप बताना है। आप लोग जो है ना, कोशिश, जो लोग भी यहाँ पर कोर्स अटेंड कर रहे हैं, तो आप ऐसी नियत कर लीजिए कि "ऐ अल्लाह, हम जो है ना हाजियों को इस साल मसले बताएंगे"। आप हज हाउस जाएं, जाकर बहुत सारे हाजियों को बताएं कि भाई नियत करते वक्त पर उनको जाकर दुआ करें। अब कई लोग कहते हैं भाई मैं हाजियों की क्या खिदमत कर सकता हूँ शेख। तो आप जो है पैसे, अगर आपके पास पैसा है तो आप किताबें, जो हम लोग छाप रहे हैं 5,000 किताबें, तो आप उसमें से लेकर फ्री में तकसीम कीजिए। और आप कहते हैं कि मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ, तो आप अल्लाहुम्मा महल्ली हैतु हबस्तन, ये दुआ हाजियों को याद करवाइए। कहे कि जरूर ये कह लेना, जरूर ये कह लेना। इसका फायदा क्या होता है? तो अगर रास्ते में कुछ बीमार हो जाए, बाद वक्त हाजी वहां जाते हैं तो वहां पर उनको नल खोलना, नल खोलते हैं तो गर्म पानी आ जाता है और उनके हाथ जल जाते हैं, इतने शदीद तकलीफ में आ जाते हैं, बाद के उनको हज और उम्रा छोड़ देना पड़ता है। बाद वक्त जो है किसी को तकलीफ हो जाती है, किसी को वहाँ गर्मी के वजह से गिर जाते हैं, तो वो हज, तो अब ऐसे ऊपर वो परेशान होते हैं कि अगर हम हज नहीं करेंगे तो कैसा, फिर हम पे दम लाजिम आ जाएगा। तो उनको आप ये दुआ सिखा सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ख्वाहिश है कि आप जो यहाँ पर कोर्स अटेंड कर रहे हैं, अभी से मैंने शुरू कर दिया है, शव्वाल से ही, और मैं ऐसे बहुत सारे अभी बार बार 7-8 मरतबा तो ये कोर्स लेता रहूंगा इंशाल्लाह। तो तब तक आप क्या कीजिए कि इतने माहिर बन जाइए कि हाजियों को आप मदद कर सके इंशाल्लाह। तो उनको ये दुआ याद करवा दीजिए। ये दुआ याद करने का, पढ़ लेने का फायदा ये होता है, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन के बाद ये दुआ पढ़ने से फायदा होता है कि हाजी आराम से अपना हराम निकाल देकर वो डिसकंटिन्यू करना है तो कर सकता है, उस पर कोई दम भी लाजिम नहीं होता। जी। इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। अगर अगर ये हज नफिल हो तो इस हज की खजा भी नहीं, लेकिन अगर फर्ज हज अदा कर रहा हो तो इससे हज साक़ित नहीं होता। जब मुस्तकबिल में इस्तिताअत हो तो फर्ज हज अदा करना लाजमी होगा। जी। एहराम बांधने के लिए कोई मखसूस नमाज नहीं, अलबत्ता किसी नमाज के बाद एहराम बांध ले तो ये मुस्तहब है। बाद उलेमा ने कहा है कि जुल्हुलैफा मदीने की मीक़ात में 2 रकात नमाज मुस्तहब है। ये एहराम की नमाज नहीं नहीं है, बल्कि इस जगह की मखसूस फजीलत की बुनियाद पर है। वल्लाहु आलम। तो एहराम की 2 रकात है, आप 2 रकात नहीं पढ़े, 2 रकात पढ़ने के बाद एहराम की नियत करना, आपका एहराम नहीं हुआ तो अपनी तरफ से दीन में कोई ज्यादती या कमी ना करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ अल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। यानी लोगों को शरीयत ऐसी बता रहे हैं अपनी जेब से निकाल कर, अपने किताबों से निकाल कर, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया बताया है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, बल्कि अमानतदारी के साथ सही इल्म बताना चाहिए लोगों को। अपने तरफ से नए नए चीजें ऐड करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तब ये जो 2 रकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, वो मदीना से आप जब जा रहे थे मक्के की तरफ, तो जुल हुलैफा आबियार अली जिसको कहते हैं, जुल हुलैफा मदीना की जो मीकात कहते हैं, तो वहां पर लोगों को गलतफहमी ये हो गई कि ये एहराम की 2 रकात है, जबकि उस पर उलमा इकराम ने कहा कि जिब्रील सलाम ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा 2 रकात नमाज पढ़िए, और कहा ये इस वादी की फजीलत की बुनियाद पर है। यानी वो जो 2 रकात है वो एहराम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोगों को गलतफहमी हो गया। अलबत्ता बाद उलमा कहते हैं कि चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकलते वक्त पर एक नमाज, एक जुल्हुलैफा उस वादी की फजीलत के लिए जो 2 रकात पढ़ी गई थी, वो जो 2 रकात थे नमाज के बाद ही तो पढ़ा है ना आपने। चलो कोई फर्ज नमाज के बाद अगर उस वक्त पे कोई नमाज आ जाती है, अगर आपने कोई नमाज के बाद पढ़ने का इरादा किया है, तहतुल मस्जिद या कोई फर्ज नमाज, तो इसमें गुंजाइश निकलती है। लेकिन अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है तो नमाज नहीं पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी एहराम की, तुम्हारा एहराम नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तलबिया, पॉइंट नंबर 4। तल, तलबिया पॉइंट नंबर 4। एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज से यूं तलबिया कहे, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ठीक है, आप हाजियों को ये भी याद करा सकते हैं। ठीक है, हाजियों को आप ये भी याद करवा, तो बहुत सारी मदद कर सकते हैं आप हाजियों को। एहराम कहाँ मिलता है, अच्छा कहाँ मिलता है, लाकर भी दे सकते हैं, उनका सामान भी जमा सकते हैं, बड़ी मदद हो जाएगी। उसका तर्जमा पढ़ लीजिए ताकि रिकॉर्ड हो जाए। मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, तमाम तारीफें तेरे लिए है और तमाम नियामतें तेरी ही जानिब से है। सारी कायनात में तेरी ही बादशाहत है, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है। तल, तलबिया की फजीलत। तलबिया शायर हज में से है। सबसे बेहतरीन हज वो है जिसमें तलबिया की गूंज ज्यादा हो। तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो इसके साथ दाएं बाएं जानिब जमीन जमीन के किनारों तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकरियां सब लब्बैक पुकारते हैं, जिसका अजर तलबिया कहने वाले को मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया की दुआएं भी साबित है। लब्बैक इलाहल हक़्क़ी, मैं हाजिर हूँ ए माबूद बरहक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलबिया के बाद किए जाने वाले इजाफे पर इकरार और इजाजत साबित है। लब्बैक दल मारिज, लब्बैक दल फवाजिल, मैं हाजिर हूँ ए बुलंदियों और अजमतों वाली जात। बुलंदियों, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बुलंदियों। जी शेख। बुलंद बुलंद वर्ड नहीं है, बुलंद वर्ड है, बुलंद, अच्छा, बुलंदी। बुलंदियों और अजमतों वाली जात। जी, जज़ाकल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक वसाअदैक वल खैर फी यदैक लब्बैक वर वर्रुग़बाउ इलैक वल अमल। तर्जुमा, मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ तर्ज तेरे अहकाम की फरमाबरदारी के लिए हाजिर हूँ। तर्जमा, जीम पे जबर। तर्जुमा, जलजला बोलते हैं ना हम, सारी भलाइयाँ तेरे हाथ में हैं। जलजला के वजन पे तर्जमा।
जी सर। जी सर। सारी भलाइयां तेरे हाथ में है, मैं हाजिर हूँ, और रगबत और अमल तेरी तरफ है। खवातीन के लिए भी जायज है कि वो बुलंद आवाज से तलबिया कहे। इतनी के पास में रहने वाली खा, पास में रहने वाली खातून सुन ले जी। मक्के में दाखिला, पांचवा पॉइंट। मक्के में दाखिला। जैसे ही मक्के की आबादी देखे, तलबिया बंद कर दे। मान लो क्या मक्के में। मदीने से या कहीं से भी लब्बैक पढ़ते यहाँ तक कि मक्का आ जाता, मक्के में भी दाखिल होते, काबे तक जाते, काबे में भी पढ़ते रहते। वैसी सुन्नत ऐसा नहीं। सुन्नत में कैसा है, मक्के की आबादी देखते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया बंद कर दिया। तो उसको आखिरी इशारा बोलते हैं, यानी आखिरी जो ट्रैफिक लाइट या पहली ट्रैफिक लाइट जो मक्के की होती है ना, तो वहां से आबादियां अगर आपको नजर आना शुरू हुए मक्के की, तो आप जो है तलबिया बंद कर दिए। सुन्नत है मक्के। जी, मक्के में दाखिला। फिफ्थ पॉइंट, जैसे ही मक्के की आबादी देखे, तलबिया बंद कर दे। मक्के में दिन के वक्त दाखिल होने, या सनिया जी सर, या सनिया औलिया, बाबुल मुआलात से दाखिल होने, अबुल और मुअल्लिम। मस्जिद हराम में बाबु मुआलात से दाखिल होने, और मस्जिद हराम में बाबे बनी शेबा के मकाम से दाखिल होने की अगर कोई कोशिश करता है, तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी गुंजाइश जरूर है, लेकिन ये फर्ज वो लाजिम नहीं है। इसलिए खुद भी मशक्कत में ना पड़े और दूसरों को भी मशक्कत में ना डाले। मक्का या मस्जिद हराम में भी हो सकता हाँ, है। कहीं से भी सहूलत हो दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मालूम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। वहां पर कोई चीजें हमको आसानी से नहीं मिलती है कि कहाँ पर है वो क्या है, और वो इतना दूर दूर चलना भी जो है थक जाएंगे। तो इसलिए सुन्नत अदा करने की जो है ना, आप कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो तलाश करते करते बाद हाजी जो है बीमार हो जाते हैं गर्मी में, और फिर फराइज रह जाते हैं। इसलिए फराइज पर तवज्जो दें, जहाँ जहाँ पर मुमकिन हो सके जरूर सुन्नतें आसानी से आप अदा कर सकते हैं तो कीजिए। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, मस्जिद हराम। पॉइंट नंबर 6, तवाफ से पहले वजू करे। हाँ, वजू करने पॉइंट का नंबर इख्तलाफ ये है कि बाद उलमा कहते हैं कि ये नमाज के लिए जैसे वजू जरूरी है, वैसे तवाफ के लिए भी वजू जरूरी है। लेकिन शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके लिए जो है ना ये मुस्तहब है। लेकिन साथ में इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह ने एक अच्छा नुक्ता बयान किया कि वजू करने में किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वजू नहीं करने में इख्तलाफ शुरू हो रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप वजू कर लें ताकि इख्तलाफ से बाहर निकल जाएं। आप मसले उठाते क्यों हैं कि मसला को हल करना पड़े। बाद वक्त कहते हैं हम तवाफ में रहते हैं, वजू टूट जाता है। तो भाई बहुत आसान है, वहां पर देखिए आप इंडोनेशिया के लोगों को मैं देख रहा था कि छोटा सा वो जो लॉक वाला पैकेट होता है ना, वो लॉक वाला पैकेट ला लेते साथ में, ठीक है। अब एक छोटा सा एक गिलास जमजम का, तो आधे आधे गिलास में भी वजू हो जाता। जमजम का जो गिलास होता है, वो प्लास्टिक का जो गिलास होता है, उसके आधे में भी तो वजू होता है। वो कैसे है कि आप जो है कुल्ली करते हैं, वो पैकेट में थोड़ा सा थूक देते हैं, फिर नाक में डालते हैं, फिर वो पैकेट में आप रख लेते हैं। फिर उसके बाद जो पानी एक 3-4 खतरे लेकर आप जो है अच्छे तरीके से चेहरे को जो है ना कच्चा कर लेते हैं, तो वजू हो गया ना। तो खतरे थोड़े थोड़े लीजिए। हम तो वजू क्या करते हैं, चार नल जो है छोड़ देने की आदत है हमको, नल खोले और छोड़ दिए। तो हमारे दिमाग में क्या है, वजू मतलब एक पूरा बैरल, पूरा एक ड्रम, पूरा एक बहुत बड़ा घड़ा, जब तक हम ना बहाए तो वजू नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, हाफ गिलास में भी वजू होता है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 2 मुद्द में आपने वजू किया। वैसे मशहूर क्या एक मुद्द, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने कहा कि वो हदीस में प्रिंट लिखने वालों से सह हुआ है, तो उन्होंने जो 2 मुद्द है असल में, तो बहरहाल 2 मुद्द। तो अगर आप देखें तो 2 चुल्लू में वजू हो जाता था, तो एक हाफ गिलास में भी वजू हो सकता है। तो आप अगर टूट जाए तो परेशानी की बात नहीं है, आप कोने में जाएं और वहां पर उस बाद लोग क्या करते हैं, वो पैकेट में थोड़ी रुई भी डाल देते हैं।
तो जैसे ही उन्होंने थूका तो रुई में जो जज्ब हो जाता है, फिर उसके बाद कचरा जो डब्बा होता है उसमें कचरे में वो पैकेट और वो रुई आप फेंक दे सकते हो, कैसे पैकेट फिर संभाल कर रख लीजिए। नेक्स्ट फिर वुजू अगर टूट जाए तो आपको फिर काम आएगा, तो जेब में रख लीजिए। तो इस तरीके से मुमकिन है कि आप वजू करें वहां ठहरे ठहरे, और जो है सिर्फ खतरे, थोड़े खतरे भी मिल जाए, आपने मल लिया, कच्चा कर लिया वजू के आगा को, तो वजू होता रहेगा ना, तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि वजू में रहे। लेकिन अगर आपने कभी वजू के बगैर तवाफ कर लिया है तो उसको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उलमा कराम मुहक्किकीन कहते हैं कि नमाज की तरह इसमें उतनी सख्ती नहीं है, लिहाजा माफ है। और खवातीन जो है अगर है, जैसे अभी मुझे 1 घंटा पहले अभी उम्रे करने वालों ने मुझे सवाल किया, 1 घंटा पहले ही अभी मक्के से मुझे सवाल आया कि खातून को जो है तवाफ के दौरान हैज आ गया, तब क्या करना, और कल हमारा सफर है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर खातून वहां पर 7-8 दिन और रहने वाली है, उमरा के लिए आई हुई है और वेट कर सकती है, तो तवाफ के दौरान अगर हैज आ जाए तो उस तवाफ को काउंट नहीं करेंगे, वापस वो अपने होटल में जाकर आराम करेंगे। जब वो हैज खत्म हो जाएगा तो फिर आकर वो तवाफ करेगी और अपना उम्रा मुकम्मल करेगी। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये आ गया है कि कल सफर करना है, तो जाहिर बात है उनके लिए रुक नहीं सकते, उनके लिए कोई फ्लाइट रुक नहीं सकती। तो यहाँ पर इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि मजबूरी में माफ हो जाते हैं। मजबूरी में क्या हो जाती है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के तहत मजबूरी में माफ है, तो औरत हैज की हालत में तवाफ करेगी। अब बाद उलमा कहते हैं कि चूंकि यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है तो दम देगी, लेकिन शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा माफ का मतलब है माफ, इसके अंदर दम भी नहीं है। अल्लाह, क्योंकि वो जानबूझकर उस औरत ने नहीं किया कुछ भी, और वो औरत मजबूर है, तो लिहाजा मजबूरी में शरीयत जो है आसानियां देती है, अल मशक्क़ा तजलिबुत तैसीर है, तो लिहाजा वो औरत के लिए माफ है, वो इसी हालत में तवाफ करेगी। अब अगर एक औरत ने तवाफ कर लिया, सही में उसको अगर हैज आ जाए, तो जाहिर बात है सही के लिए तहारत में रहना शर्त नहीं है, तो औरत आसानी के साथ हज की हालत में सही कर सकती है, कोई मसला नहीं। तवाफ में अलबत्ता इख्तलाफ है। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त पहले दायां राइट कदम रखे और ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। तर्जमा: मैं अजमत वाले अल्लाह, इसके करम वाली ज़ात और इसकी क़ुव्वत व शौकत के ज़रिए शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली दुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हुए मस्जिद में दाखिल होता हूँ। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और निकलते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली दुनूबी वफ़्तह ली अब्वाबा फ़ज़लिक। अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हुए मस्जिद मस्जिद से निकलता हूँ। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मेरे लिए अपने फजल के दरवाजे खोल दे। तवाफ। तवाफ। तवाफ में इस बात का ख्याल रखें कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, खुसूसन हजर अस्वद को बोसा देने या छूने के दौरान। तवाफ शुरू करने से पहले कंधों वाली चादर का हिस्सा दायां राइट कंधे की नीचे से निकालकर बाएं लेफ्ट कंधे पर डाल ले। हालत इस्तेब हालत इस्तेबा इख्तियार करे। ठीक है, फोटो में बताया जा रहा है कि हजर अस्वद को जो है खुला है, लेकिन नमाज अगर इस हजर दौरान अस्वद को दाएं हाथ नमाज का टाइम आ जाए तो फिर कंधा ढकना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युसल्लियन न रजुलु वलैसा अला आतिक़ैहि शै, आदमी नमाज ना पढ़े इस हालत में कि उसके कंधे पर चादर ना हो। तो इस हदीस से पता चला कि बाद हाजी हजरत कंधा खुला रख के नमाज पढ़ते हैं, तो आप उनको कहें, इशारा करें कि कंधा ढांक लो, वो कहेंगे कि मैं तो तौफ में हूँ, तो कोई बात नहीं है, नमाज के लिए ढांक सकते हैं जी। जी, हजर अस्वद को दाएं हाथ से छूकर या इशारे से इस्तलाम करके तवाफ शुरू करे।
काबतुल्लाह को देखते हुए तवाफ करना और दुआ करते जाना जायज है। हाँ, बाद लोग समझते हैं कि काबतुल्लाह को देखना जायज नहीं है, ताजीम है, कैसा हम देखेंगे, ये अल्लाह का घर है। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को देखते जा रहे थे और कह रहे थे काबा तो कितना अजीम है, ऐ काबा तेरा कितना ऊंचा मकाम है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुझसे तुझसे ऊंचा मकाम मुसलमान का है। तो मोमिन का दर्जा क्या है, काबे से भी बड़ा है। तो यहाँ पर देखना, हदीस में क्या लफ्ज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को देखते जा रहे थे, तो इससे मिली के देखना जायज है। बाद लोगों के पास गलतफहमी है कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, तो पहली नजर की सारी दुआएं माफ होती। तो बाद लोग क्या करते, आंख बंद करके जाते, बोलते कि जरा मुझे काबा करीब आया तो मेरी आंख खोलो, जब तक मुझे अब्बू लेकर जाओ। तो बहुत सारे खवातीन बच्चियां आंख बंद करके चलते, तो वो पहली नजर पड़ते ही दुआ कबूल होती। तो बेचारा अब अंधा क्या करना, तो अंधे की दुआ कबूल नहीं होती। तो ये सब खुराफात है, लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। सही हदीस ये है कि हाजी जो होता है वफ्दुल्लाह है, अल्लाह का वफ्द है, वो वापस लौटने तक हाजी की हर दुआ कबूल होती है, यानी घर से निकलकर वापस लौटने तक हर दुआ कबूल होती है। सही हदीस में कितनी वसात है, और जबकि ज़ईफ और मनगढ़ंत ये मुरा खुराफात, ज़ईफ हदीस भी नहीं है तो खुराफात है, लोगों ने बना लिए हैं। तो इसलिए सही हदीसों का चलन आम करना चाहिए। हजर असवद, हजर अस्वद नोट, हजर अस्वद को बोसा देना और अगर मुमकिन हो तो इस मुमकिन पर उस पर परेशानी भी रखना जायज है। आपकी आवाज नहीं आ भी रखना है। और अगर मुमकिन ना हो सके तो हाथ या छड़ी से। जी जी, अभी आ रही है आवाज। हाँ बार। हाथ या छड़ी से इसको छू लेना, और जिससे छुआ है इसका इसका बोसा लेना जायज है। हाँ, अगर छूना लोगों की भीड़ की वजह से मुश्किल हो तो हाथ से इशारा कर दे, लेकिन इशारे की सूरत में हाथ को बोसा ना दे, और इशारा करते इशारा करते वक्त वक्त खुले रफ की तरह दोनों हाथों को बुलंद हाथ से करे, बल्कि सिर्फ एक हाथ का इशारा हजरत को करे। राइट इशारे से करना। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। जी, तो ले इशारा कर सकते हैं आप ऐसा, बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह। लेकिन इशारा करे जब बोसा लेने की दलील नहीं है, लेकिन हाथ अगर लगे अजर असवद को तो तब बोसा लेने की दलील है। नोट, नोट, काबे को देखते ही हाथ उठाना और दुआ करना चाहिए, और ये दुआ सहाबी से साबित है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। तर्जमा, या अल्लाह, तू सरापा सलामती वाला है और तेरी ही जानिब से सलामती है, तो ऐ मेरे रब, जिस्म और रूह की सलामती के साथ हमें जीने की तौफीक दे। 8। हजर अस्वद के छूते या इशारा करते इस्लाम के वक़्त अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहे। फजीलत, हजर अस्वद और रुकन यमानी को छूने से गुनाह धुल जाते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजर अस्वद लाएगा। इसकी दो आंखें होगी जिससे वो देख रहा होगा, और जुबान होगी जिससे वो बात कर रहा होगा। इस शख्स के हक में गवाही देगा जो इसे हक के साथ इस्तेलाम किया होगा। जबां, हजर जबां, अस- आंखें दबर, जबां, जबान हो। जी, हजर अस्वद जन्नत से उतारा गया पत्थर है। वो बर्फ से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम की खताओं के सबब सियाह पड़ गया। ये मानी। पॉइंट नंबर 9। रुकन यमानी, पॉइंट नंबर 9, रुकन यमानी को सिर्फ छुए, बोसा ना दे। अगर छूना मुमकिन ना हो तो फिर इशारा किए बगैर निकल जाए। हाँ, यहाँ पर छूना है, बोसा देने की दलील नहीं है। और इसी तरह लोग क्या करते हैं, काबे के जो है ना सारे गिलाफ, हर जगह गिलाफ को पकड़ के दुआ समझते हैं, हर जगह गिलाफ को पकड़ना है, नहीं। हजर असवद और दरवाजा, जो दरवाजा है काबे का, वहां पर छूना, वहां पर अपने सीने को लगाना, चिमटना, मुल्तजम कहते हैं उसको, उसकी दलील मौजूद है। लेकिन काबे के चारों तरफ जो चादर है, गिलाफ है, उसको पकड़ के दुआएं मांगने की कोई दलील नहीं है। तो लोग उसको हाथ लगाए तो सुन्नत है ऐसा समझते, ऐसी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 10।
جی پوائنٹ نمبر 10، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پانی کدھر ہے؟ تو وہاں پر کلاک ٹاور جو بنا ہوا ہے، اس کے پر ربنا جی آتنا فی دنیا حسنتوں فی الاخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار اوپر وہ کلاک ٹاور میں نظر آتی ہے، وہ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اب رکن یمانی کی طرف آ چکے ہیں۔ جی جی ترجمہ: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور جہنم کی آگ سے بچا، اور باقی طواف میں جو بھی قرآنی یا صحیح احادیث کی دعائیں یاد ہو وہ پڑھنا مسنون ہے۔ نوٹ۔ نوٹ: طواف کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ طواف کے دوران گفتگو جائز ہے، لیکن بلا وجہ بات چیت سے پرہیز کرے، عبادت پر توجہ دے۔ اگر اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو طواف نہ کرے۔ 1 لاکھ کا ثواب مسجد حرام کے لیے خاص ہے۔ مکے کی ہر مسجد میں اتنے ہی ثواب کا تصور کرنے میں احتیاط لازمی ہے۔ اللہ علیہ نے کہا مکے کی کوئی بھی مسجد میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ ثواب ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، حدیث میں واضح طور پر مسجد الکعبہ کا ذکر آیا ہے، تو لہذا صرف مسجد حرام یعنی کعبے کو جو لگ کر مسجد ہے اسی کی یہ فضیلت ہے۔ تو بعض اوقات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال مسند احمد بن حنبل کے الفاظ سے بھی بعد نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کے باہر گئے تھے، نماز کا ٹائم آیا تو کہا کہ چلو حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حرم کے باہر کیوں پڑھیں گے؟ تو اس سے پتا چلا کہ حرم کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یقیناً اس سے حرم کی ایک اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یقیناً حرم غیر حرم میں پڑھنے کے بجائے اب حرم کے حدود میں آ کر پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑی فضیلت والی شے ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا ثواب مل گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 1 لاکھ کا ثواب نہیں کہا۔ تو مسجد الکعبہ جب آ گیا، 3 مرتبہ آیا مسجد الکعبہ مسجد الکعبہ مسجد الکعبہ، اس وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کرتے ہوئے کہا کہ کوشش یہ کریں کہ آپ کعبے کو لگ کر جو راؤنڈ میں آپ کو مسجد ہو رہی ہے اسی مسجد میں جائیں۔ مکے کے دوسرے مسجدوں میں پڑھ کر اتنی دور سے آپ آئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ حرم کی مسجد میں جائیں، آپ جا کر وہاں کی مسجد سے 1 لاکھ ثواب بٹورنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 11۔ جی مردوں کو چاہیے کہ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں تیز رمل چلے اور باقی 4 چکروں میں معمول کے مطابق چلے۔ عورتوں کو تیز رمل نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں جی پوائنٹ نمبر 12، کعبے کے دروازہ حجر اسود کے تھے کہ درمیانی حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ آپ کے چادر اٹھ جاتی تھی، تو اتنا تیز چلتے تھے، اور کفار قریش جو ہے دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ مدینے میں یعنی یہ لوگ مدینہ جا کر کچھ بیمار ہو گئے شاید، کیونکہ یثرب یثرب کہتے تھے مکے کے لوگ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر رمل کر کے بتایا، اور پورے کفار قریش دیکھتے رہ گئے۔ جی یہ بھی روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی پوائنٹ نمبر جی 12۔ کعبے کے دروازہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ اور سینے کو کعبے کے اس حصے سے چمٹاتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ جی پوائنٹ نمبر 13، اس طرح کعبۃ اللہ کے 7 چکر مکمل کرے۔ طواف کے ہر چکر میں طواف کے ہر چکر میں ممکن ہو تو حجر اسود کو استلام کرے یا پھر دور ہی سے اشارہ کر کے گزر جائے۔ جب 7واں چکر ختم کر کے اتنے حجر اسود کی طرف آئے آتے آتے ہیں اس وقت بھی تکبیر اور استلام کرنا چاہیے۔ مقام ابراہیم۔ پوائنٹ نمبر 14۔ مقام مقام ابراہیم 7 چکر پورے کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آئے اور وہاں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد
پڑھے، اس کے علاوہ کوئی اور صورتیں یا آیات پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زمزم۔ زمزم، پوائنٹ نمبر 15، نماز کے بعد آب زمزم اسی جگہ ٹھہر کر پیے اور کچھ سر پر ڈالے بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استعلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے۔ صحیح۔ صحیح، پوائنٹ نمبر 17، صفا پہاڑ پر چڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ عین یتوفا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ، یاد رکھو صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اسے ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے نفلی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر یہ الفاظ کہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی سے شروع کرتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ 18۔ صحیح۔ پوائنٹ نمبر 18، صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام قسم کی تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس اکیلی ذات نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اپنے ماننے والے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی، اور اپنے دین کی مخالفت کرنے والوں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ صفا اور مروہ کے درمیان خوب دعائیں مانگنا چاہیے، صفا اور مروہ پر پہلی بار ہی آیت پڑھے، بقیہ مرتبہ صرف دعائیں پڑھے۔ پوائنٹ نمبر 19، صفا سے سعی کا آغاز کرے، مروہ پہاڑی پر جانا اور اوپر دیے گئے 18 نمبر کے عمل کو دہرانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 20، مرد حضرات سبز گرین نشانی کے درمیان تیز تیز چلے، عورتیں نہیں۔ پوائنٹ نمبر 21۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر شمار کر کے اس طرح 7 چکر پورے کرے۔ نوٹ، اس طرح مروہ سے صفا دوسرا چکر شمار ہوگا، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 22، دوران سعی جو بھی قرآنی یا صحیح احادیث کی دعائیں یاد ہو پڑھتے رہے، یا کسی صحیح دعاؤں کی کتاب میں دیکھ کر پڑھے۔ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں۔ صحیح میں کوئی اختلاف؟ سعی میں یہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ جی، سعی میں یہ دعا خالی بعض آپ سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرے، اس کے بعد 2 رکعت ہوتی نا، وہاں تک سنبھال کر رکھے، اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں۔ سعی میں یہ دعا بعض صحابہ سے ثابت ہے، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، میرے رب میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم کر کیونکہ تو سب سے زیادہ عزت و کرم والا ہے۔ طواف سعی وغیرہ کے وقت دیکھا گیا کہ لوگ کیمرے سے تصویریں لیتے ہیں، یا یاد رکھیے یادگار تصاویر کا لینا ناجائز ہے اور حرم کی توہین ہے۔ طواف اور سعی کے دوران فرض نماز شروع ہو جائے تو طواف اور سعی چھوڑ کر نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، نماز کے بعد باقی طواف اور باقی سعی مکمل کر لے۔ حلق اور تقصیر۔ حلق مانے پوری طرح سے بال، سر کے بال جو ہے شیو کر دینا، تقصیر مانے کٹنگ کرنا۔ جی۔ جی۔ پوائنٹ نمبر 23، سعی کے بعد یہ نقطہ م- خاص آ، ہے، تمتع کرنے والے۔
جی سر تو تھوڑا زوم کریے نا سر، بہت باریک دکھ رہا अभी बड़ा हुआ हूँ जी। تھوڑا بڑا ہے۔ और बड़ा ना। جی سر بس۔ حج تمتع کرنے والے عمرہ کے हज तमत्तो करने वाले के लिए उमरा के बाद बाल कटवाना बेहतर है मुंडवाने से। बाल कटवाना جی बेहतर है क्योंकि अब थोड़े दिन के बाद आपको हज आने वाला है। तो बेहतर है कि शेव कब करें आप बाल सर का? हज में। तो جی बाल क्या करते हैं उम्रे में ही आपने जो है पूरी तरीके से हलक कर लिया। अगर आपने गुंडू कर ली, पूरे सर के बाल आपने जो है ना शेव कर लिए, तो फिर हज के लिए अगर मान लीजिए टाइम बहुत करीब आ गया, तो फिर आपके पास सर पे बाल ही नहीं है ना, तो फिर खाली उस तरह घुमा लेते बाल लोग। तो उसके बेहतर क्या है, हज तमत्तो करने वाले के लिए उमरा के बाद बाल कटवाना बेहतर है मुंडवाने से। दलील क्या है? इसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस्तेदलाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से जो आपने सहाबा से उमरा के बाद फरमाया, फल युकस्सिर तुम्मा तुम्मा तुम्मल युहल्लिल तुम्मल युहल्लिल। फिरवाल गलील में हदीस नंबर 1083 में है, यानी बाल कटवाओ, तकसीर कर लो, हलक नहीं। नोट, अहले इल्म ने वजाहत की कि उम्रे में बाल कटवाना उस वक्त अफजल है। क्या कह रहे हैं? उम्रे में बाल कटवाना उस वक्त अफजल है जब हज के अय्याम करीब हो, क्योंकि हज में बाल मुड़वाने का अफजल अमल बजा लाने के लिए बाल मौजूद रहे। समझ में आ गया ना? पॉइंट नंबर 23। پوائنٹ نمبر 23، صحیح کے بعد مردوں کو سارے سر کے بال کٹوانا یا سر منڈوانا چاہیے، اور خواتین کو ایک پور بال کاٹنا چاہیے۔ پور نہیں ہے، پاور پاور بولتے ہیں، پاور یعنی یہ جو انگلی کے اوپر یہ جو ہے نا، جی انگلی جی جی اوپر کا جو انگلی کا حصہ۔ جی سر پاور۔ عمرہ اور حج کرنے والے ایک دوسرے کے بال نکال سکتے ہیں، اس طرح عورتیں ایک دوسرے کے بال ایک پاور کے برابر کاٹ سکتی ہے، چاہے مروہ پہاڑی پر یا گھر آ کر۔ عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی نامحرم ان کے بال نہ کاٹے، محرم ہی کاٹے یا خود عورت کاٹ لے۔ پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر 24، پھر احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح عمرہ قرآن و سنت کے طریقے پر مکمل ہوگا۔ الحمدللہ سامعین کرام اور سامعات، الحمدللہ آج دو ٹاپکس اہم کور ہوئے۔ طہارت میں جو ہے نجاست کی پہچان پر تقریباً 24 سے بھی زائد جو نجاست کے قسمیں، اس میں سے 15 کی پہچان الحمدللہ آج حاصل ہوئی۔ باقی کے اگلے انشاءاللہ ہفتے میں انشاءاللہ پھر جمعرات کے دن اسی وقت پر ہم فقہی کلاس لیں گے، تو اس میں انشاءاللہ طہارت کے بقیہ مسائل ہوں گے۔ اسی طریقے سے حج کا طریقہ، آج جو عمرے کا طریقہ 24 کام کر لینے تھے عمرہ کے اعمال ختم ہو جاتے، اور 25 کام کرنے سے حج کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم حج کے 25 اعمال کیا ہیں وہ جانیں گے۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو، اور آپ سب کا شکریہ، ہمارے پڑھنے والے شیخ نصیر الدین جامعی، آپ یہ بہت بڑے عالم ہیں، جید عالم ہیں، لیکن آپ نے پڑھنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے آپ جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہمیشہ۔ اللہ جزائے خیر دے، ان کے گھر والوں کی بھی رحمت برکت نازل فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بھائی کا نام کیا ہے؟ ٹی وائی ڈور، جی جی سر۔ نام آپ کا؟ جی تاج ہے سر میرا، جی، تاج ہے سر میرا، تاج الدین۔ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے فیملی پہ اللہ تعالیٰ، ان پر اور ان کے فیملی پہ اللہ رحمت برکت نازل کرے۔ اسی طریقے سے اس سیشن میں حاضر ہونے والے سارے معزز مرد اور خواتین اور سب دینی کام میں جڑے ہوئے سارے ہی لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، سب پر رحمت برکت نازل کرے، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ فقہی مسائل، تفسیر، حدیث، عقیدہ، ہر مسئلے میں ہم کو علم سے بہراور ہو کر لوگوں کو سچا علم بتانے کی ہمیں کوشش کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے سیشن میں اور زیادہ حاجی حضرات، ہم انشاءاللہ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں نا، ابھی ہم یہ شوال میں کیا کریں گے، ایسے ہی پریکٹس کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ سب جو ہے اور حاجیوں کو لے کر آئیے، پھر حاجیوں کے لیے مستقل طور پر ہم 2 2 گھنٹے، 4 4 گھنٹے کے کیمپ بھی
मुनक़िद करेंगे जूम के जरिए से इंशाल्लाह। खास तौर से एक्सक्लूसिवली छुट्टी, जैसे संडे को छुट्टी होती है तो उस वक्त पर 4-4 घंटे का एक सेशन लेंगे। 2 घंटे उमरा, 2 घंटे हज, अच्छे तरीके से समझाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी बहुत सारे लोगों को जमा कीजिए। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के बाद हर संडे को हम एक एक इल्मी सेशन मुकर्रर करेंगे। जब तक आप खूब लोगों को जमा कीजिए, आपके करीबी लोगों को भी इंशाल्लाह। तो फिर दीजिए इजाजत अरशद बशीर मदनी को। और जरूर जो है वेबसाइट पढ़ते रहिए, www.abmqurannote.com। इस पर सारी किताबें मौजूद है। हज की किताबें, उम्रे की किताबें जो है उर्दू में है, इंग्लिश में है, रोमन में है, गुजराती में है, और हिंदी में है, तेलुगु में है, और बंगाली लैंग्वेज में है। तो आप इससे फायदा उठाइए, लोगों को आप इंग्लिश में भी है, दूर दूर तक फैलाइए इंशाल्लाह। और अभी 5,000 किताबें प्रिंटर ने छापी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि शेख मैं तो छाप रहा हूँ अपना पैसा डालकर, जब आप आए तो दे दीजिए और लोगों को फ्री में तकसीम करने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अभी एक खातून ने कहा कि 1,000 मेरी तरफ से, तो 1,000 यानी 50 रुपए में एक बुक, मतलब 1,000 बुक मतलब 50,000 रुपए। उन्होंने कहा कि शेख लेकिन वो 1,000 मुझे पूरे बुक मुझे चाहिए, ये मैं तकसीम करूंगी, मेरे हलके हैं, मैं आलिम हूँ, मेरे पास बहुत सारे शागिर्द हैं। तब मेरा इरादा है कि हमारे भी बहुत सारे शागिर्द हैं जो बांटना चाहते हैं, तो इसलिए बाकी के लोगों से भी मैंने गुजारिश की कि आप लोग आगे बढ़े। तो माशाल्लाह आज एक भाई ने जो है कहा कि शेख मेरी तरफ से 500 किताबें। तो इसी तरीके से और भी आप जितना हो सके प्रिंटर को आप पे करेंगे, उनके अकाउंट में आप पैसे डालेंगे, फिर आप हमको स्क्रीनशॉट दीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि वो किताबें जो जो भी हमको कलकत्ता से, गुजरात से, हर जगह से कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, शेख अगर किताबें फ्री की 100 है तो भेजिए। तो हम उनको क्या बोलते हैं, ठीक है आप पोस्टल चार्जेस दीजिए, हमारे पास पैसे अगर फ्री के आ गए तो हम उनको फ्री में 100 भेजते हैं, लेकिन पोस्टल चार्जेस ले लेते हैं। तो जो भी पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से खर्चा आता है वो लेते हैं, बाकी का फ्री में दे देते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि फ्री में तकसीम करें। आप लोग भी तवज्जो दिलाइए, जो कोई भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं सवाब जारिया में, तो वो अपनी तरफ से कोई 100 किताबें, कोई 500 किताबें, कोई 1,000 किताबें इस तरह डोनेट करे, ताकि हम, हमारी ख्वाहिश ये है कि बहुत सारे हाजी हजरात तो किताबें पढ़ते हैं लेकिन दईफ मनगढ़ सब पढ़ लेते हैं, लेकिन सही सही ऑथेंटिक पूरे हवालों के साथ, किबार उलमा के फतवों के साथ, ये किताब मुख्तसर भी है, कलरफुल भी है, और इसको इस्लाम हाउस और बड़े बड़े इदारों ने इसको नंबर 1 किताब का लक़ब भी दिया है। सऊदी अरब के इस्लाम हाउस ने इसको नंबर 1 का खिताब भी दिया है। तो फिर ऐसी किताब को हमको फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हाजी हजरात जो सही सही तरीके से उम्रा करे, इंशाअल्लाह हज करे। ये मकसद है, रियाकारी मकसद नहीं है। अल्लाह ताला हमको रियाकारी से बचाए, अल्लाह ताला हमारे कामों में ईमान, इखलास और इत्तिबा अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते हज का तरीका हम सीखेंगे। फिर जरूर आइए जुमेरात के दिन, इंडिया के 9:30 बजे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।